वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारी साध संगत जीओ, हर रोज की तरह संगत रूप दे विच जुड़ के सतगुरां दी बाणी दी विचार करिए, सतगुरां दे उपदेश नूं समझिए, मन्निए, कमाउण दी कोशिश करिए। आपां विचार रहे हाँ बाणी गौड़ी राग दे विच महल्ले पहले दी बाणी अष्टपदियां। कल विचारदे सी कि परमेश्वर जो कि एक ही है, जो साडा सारियां दा एक ही खसम है, जो सच है, उसने दो रस्ते तैयार किए ने संसार दे। एक है लिव दा रस्ता, दूजा है तात दा रस्ता। लिव दे रस्ते नूं गोबिंद मार्ग, तात दे रस्ते नूं जम मार्ग कहा गया है गुरबाणी दे विच। लेकिन एक परमेश्वर वालों ही खेड रचिया होया है। इस करके आपां परमेश्वर नूं जानना है गुर दे ज्ञान द्वारा। राह दोवै खसम एको जान, गुर कै शब्द हुक्म पहचान। भी गुर दे शब्द द्वारा तू हुक्म नूं पहचान। हुक्म की है? नाम। सगल रूप वर्ण मन माही, कहो नानक एको सालाही। सारियां दा एक ही रूप है साडा, प्रकाश रूप है, वो मन दा रूप है। जदों मन प्रकाश हो जाता है फिर आपां सारे एक रूप हाँ। फिर एक दी ही जीव सिवसला करता है। जदों अपने आप नूं जान लैंदा है, हुक्म नूं पहचान लैंदा है, प्रकाश रूप नूं जान लैंदा है, फिर सदा एक परमेश्वर दी सिवसला करता है, नाम दी सिवसला करता है। इत्थे तक आपां विचार कीती सी कल। आओ अगला शब्द विचारदे हाँ गौड़ी राग दे विच महले पहले दा। रहो पंक्तियां ने शब्द दियां। ऐसा जोगी जुगत विचारै, पंच मार सच साच उरतारै। जदों जेड़ा जीव अपने अंदर जेड़े पंच होर ने उन्हां नूं मार के सच नूं हिरदे च वसा लैंदा है, वही फिर जुगत दी विचार करता है, उस नूं जोगी कहते हैं। जोगी कोई वखरा नहीं है, क्योंकि जोगी जोग एक धर्म चलिया, पंथ चलिया है जोग। इदां ही बहुत सारे पंथ ने जिहदे विच किसे विच पंडित हुंदा है, किसे च मौलवी हुंदा है, किसे च जोगी हुंदा है। पर जोगी किहो जिहा हुंदा है? जिहड़ा जुगत दा ज्ञान देंदा है। पर कदों देंदा है? जदों पंजां नूं अपने अंदरों मार लैंदा है, सच नूं हिरदे विच बसा लैंदा है, वो फिर जोगी है। वो जुगत विचार करता है, किहड़ी जुगत है जिहदे द्वारा आपां परमेश्वर नूं पाउणा है, उस दे नाल जुड़ना है, उसदा जोग करना है, उसदे जोग बनना है। ये रहो पंक्तियां ने शब्दियां। आओ शब्द शुरू करते हाँ। अध्यात्म कर्म करे ता साचा, मुक्त भेद क्या जाना काचा।
ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮ ਕਰਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਦਾ ਭੇਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੁਗਤ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਮੁਕਤ ਭੇਦ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜੁਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੇਦ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੇ ਅੰਤਰ ਸਾਚ ਵਸਾਵੇ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਕੀ ਕੀਮਤ ਪਾਵੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਮਾਲਕ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ। ਪਾਂਚ ਦੂਤ ਮਿਲ ਪਿਰੋਂ ਵਿਛੋੜੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਪੰਜ ਰੁਸਾਏ ਪੰਜ ਮਨਾਏ। ਪੰਜ ਰੁਸਾਏ ਪੰਜ ਮਨਾਏ, ਪੰਜ ਗਵਾਏ ਪੰਜ ਵਸਾਏ। ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਵਸਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਦਇਆ, ਜਤ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਨਿਮਰਤਾ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜੋਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੁਗਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਜੁਗਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਵ ਸਸ ਏਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਉਦਿਆਨ, ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਕਰਮ ਸਮਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਮਨ ਆ ਕੇ 9 ਦਰਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2 ਦਰਾਂ ਤੋਂ 2 ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ
एक घर दे विच दोनां नूं लैके जाना है। एक शब्द एक भीख्या मंग है। एक ज्ञान है जिहड़ा एक शब्द दा जोगी भिख्या मंगदे ने, झोली लैके पिंडां च मंगण जांदे ने, लेकिन इत्थे जिहड़ी भिख्या मंगणी की हुंदी है कि आपां गुर दे ज्ञान दा भिख्या मंगणी है। एक शब्द दा ज्ञान लेना है, गुर शब्द दा ज्ञान, ये भिख्या मंगणी हुंदी है। ज्ञान ध्यान जुगत सच जागै, ज्ञान ध्यान दी जिहड़ी जुगती है, जिहड़ी सच्ची जुगती है, जिहदे द्वारा मन जागदा है सच्चा, क्योंकि मन त्रै गुणा सुता है, फिर इसदा असली जागना हुंदा है जदों असीं एक शब्द दा भिख्या मंगदे हाँ, एक शब्द नूं गुर दे ज्ञान नूं मंगदे हाँ। फिर गुर दे ज्ञान द्वारा ही सच्ची जुगती द्वारा ही मन जागदा है। भै रच रहे ना बाहर जाए, भै दे विच रहिंदा है, बाहर नहीं जाता, अंतरगत। बाहर की है कि सीधे जाते असीं बाहर चले जाते हाँ, इधर नूं जाते हाँ, अंतरगत जाते हाँ। जे सानूं चेता रहिंदा है, पै रहिंदा है मालक दा, फिर साडा ध्यान इस पासे नूं चलदा रहिंदा है। फिर मन बाहर नहीं जाता, अपने घर विच जांदा है। घर च जाके सामने देखता है मालक नूं, उहदे पै दे विच रहिंदा है। कीमत कौन रहे लिव लाए, जेड़े फिर इदां लिव जोड़ के रखते ने उस मालक दी, ਉਹੀ फिर सानू उस प्रभु का ज्ञान देंदे ने कि किस तरीके नाल किहड़ी जुगती है, किवें आपां उस प्रभु नूं पाउणा है। आपे मेले भरम चुकाए, फिर उन्हां जनां द्वारा आप सानू मेल लैंदा है, भरम खत्म कर देंदा है। गुर प्रसाद परम पद पाए, आप गुर दा ज्ञान दे के आप ही मना लेंदा है, भरम दूर कर देंदा है ते परम पद प्राप्त होंदा है। गुर नूं त्याग के, गुर दा ज्ञान जदों असीं मंगांगे, भै च रह के करांगे ते आप सानू मिला लेंदा है। गुर की सेवा शब्द विचार, गुर दी सेवा की है, पहला गुर नूं ध्याउंदे हाँ, फिर गुर दी सेवा मालक लाउंदा है, फिर शब्द दी विचार करते हाँ। गुर शब्द का ज्ञान देंदे ने, ये गुर दी सेवा है। जदों असीं पहला गुर नूं ध्याउंदे हाँ, गुर ते विश्वास करते हाँ, गुर सानू मालक दे सन्मुख कर देंदा है, आत्मा दे सन्मुख कर देंदा है, परमात्मा दे सन्मुख कर देंदा है। ते फिर परमात्मा सानू इस सेवा दे विच लाउंदा है कि हुण इस शब्द दी विचार करो, फिर वो शब्द दी विचार बन जाती है गुर दी सेवा। हम मैं मारे करनी सार, वो फिर करनी जिन्हें अपने हौमे मारी है, वो दूजे जीव नूं दसदे ने कि किवें आपां अपनी हौमे नूं मारना है, किवें दो दृष्टि तो एक दृष्ट होना है, किवें मन नूं अस्थूल तो प्रकाश रूप करना है। फिर ये ज्ञान देंदे ने जीव जिन्हां नूं मालक इस सेवा दे विच लाउंदा है, शब्द दी विचार दा खजाना बख्शिश करता है। जप तप संजम पाठ पुराण, कहो नानक अपरंपर मान। जदों उस प्रभु नूं सुन के जेड़े मन लैंदे ने, ज्ञान लैके जेड़े मन लैंदे ने, उन्हां दा फिर जप तप संजम पाठ पूजा जो है प्रवान हुंदा है, जेड़े गुर दे ज्ञान नूं सुन के मन लैंदे ने। क्योंकि यही त्याग सुन के मन लेना, मन के भाव करके कमाउणा ही साडा असली जप तप है, असली पूजा है, असली पाठ पुराण है।
आओ अगला शब्द गौड़ी राग दे विच महले पहले दा है। रहो पंक्तियां ने जोगी को कैसा डर होए, रूख बिरख ग्रह बाहर सोए। जिहड़ा जोगी है उसनूं फिर डर नहीं रहिंदा, क्योंकि जिहड़ा जिवें शरीर करके जोगी है, इत्थे मन करके जिहड़ा जोगी है वो फिर जिवें आपां देखते हाँ कि जोगी जंगलों च रहिंदे सी, उत्थे कंद मूल खांदे सी, उत्थे सौंदे सी। इदां ही जिहड़ा मन है इस संसार नूं जंगल कहा, उद्यान कहा है। साडा शरीर दरख्त है। मन फिर ये दिशा पैंदा है, रहिंदा है, पर उसनूं कोई डर नहीं है, निडर हो जाता है। रूख बिरख ग्रह बाहर सोए, घर तो बाहर सौंदा है। फिर डर खत्म हो जाता है, क्योंकि मन जदों सोझी हो जाती है कि जदों समा आना है, मौत आनी है, मारन वाला आप है, रखण वाला आप है, पालनहार आप है, ते मन उस जागदा है, उस विच समा जाता है, ते पता चल जाता है कि मरदा जमदा तो शरीर है। मन मरदा नहीं है, मन जां तां अगली जून भी जाता है, जां फिर मुक्त हुंदा है। जदों जुगती जिसनूं मालक दया करता है मुक्त हो जाता है, फिर उसनूं डर खत्म हो जाता है, जिथे मर्जी रह सकता है। ये जिहड़ी डर ते जिहड़ा दस्सिया है भी डर खत्म हो जाता, निडर हो जाता है। रोह पंक्तियां ने शब्दियां खिमा गही व्रतशील सुतोखंग, रोग न व्यापै ना जम दोखंग। इदां ही मन जिवें संसारिक तौर ते जोगी बाहर सौंदा है, निडर हो जाता है, डर खत्म हो जाता है। इदां ही सानू समझाउंदे ने कि जे असीं खिमा गुर दा ज्ञान लैंदे हाँ, खिमा मंगदे हाँ, अपना मन सतगुर नूं दे देंदे हाँ, जिवें महाराज समझाउंदे ने खिमा गही मन सतगुर दिया, भी मन दे दिता, खिमा मंगी भी जो मेरे कीते पाप ने वो मैनू क्षमा कर दिओ। ते फिर मन दिंदे हाँ, मन समा जाता है। इहदे नाल की हुंदा है, मन नूं संतोख आउंदा है, मन दा व्रत शुरू हो जाता है, क्योंकि मन दा आपा खत्म हो जाता है, मन अपनी मत छड़ देंदा है। रोग ना व्यापै ना जम दोख, जदों मन खिमा मंगदा है, आप खत्म कर देंदा है, उस मालक च समा जाता है, ते फिर ना तो इसनूं कोई रोग व्यापदा है, ना इसनूं जामां दा डर रहिंदा है। जम दुख नहीं दे सकते। दुख कदों देंदे ने, जदों मन पाप करदा है, जदों अपने कीते पिछले कर्मां दी खिमा मंग लैंदा है, ते फिर मालक दे हुक्म दे विच चलदा है, व्रत रखदा है, किसी दे नाल वैर विरोध नहीं करदा, निंदा चुगली नहीं करदा, पराया तन ते सबर संतोख दे विच रहिंदा है। ते फिर इसनूं ना तां जन्म मरण दा रोग व्यापदा है, ते ना जमां दा दुख सहना पैंदा है। मुक्त भए प्रभु रूप न रेखं, जिवें प्रभु है उसका कोई रूप रेख नहीं है, इदां ही मन भी साडा मुक्त हो जाता है, प्रकाश रूप हो जाता है, ते फिर जन्म मरण तो रहित हो जाता है, मुक्त हो जाता है। निरभव जोगी, 'निरंजन' 'ध्यावे'। इदां फिर मन जदों निरभव हो जाता है, 'निरंजन' 'ध्यावे'। 'निरभव जोगी, 'निरंजन' 'ध्यावे'। 'निरभव जोगी, 'निरंजन' 'ध्यावे'। 'निरंजन' 'ध्यावे'। 'निरभव जोगी, 'निरंजन' 'ध्यावे'। इदां फिर मन जदों निरभव हो जाता है,
उस मालिक प्रगट हो जाता, उसनूं त्याउंदा है, खिमा दी जाचक बन के कीते पापां नूं खत्म कर लेंदा है। क्योंकि जिहड़ा गुर है, नाम है, वो साडे पिछले सारे पापां दा नाश कर देंदा है, करोड़ां पापां दा नाश कर देंदा है। हर का नाम कोट पाप पर हरै। फिर उस प्रभु नूं वो प्रगट हो जाता है, फिर उसनूं ध्याउंदा है, ध्याउण दे नाल निरभउ हो जाता है। जिन निरभउ जिन हर निरभउ ध्याया जी, तिन का पौ सब गवासी। निरभउ जपै सगल पौ मिटै, प्रभ किरपा ते जम प्राणी छुटै। अन दिन जागै सच ले बुलावै। मैं समझाउंदे ने अन दिन जागदा है, हर रोज़ भरम दे विच नहीं पैंदा, किसी होर नूं रब नहीं मनदा, किसी होर दी पूजा नहीं करदा, सिर्फ निरंजन नूं ध्याउंदा है, क्योंकि निरंजन प्रगट है। इदां फिर उस प्रभु दे नाल लेव जुड़ जाती है। फिर अन दिन जागदा है, सच नाल लेव जोड़ के रखता है। सो जोगी मेरे मन भावे। ते ऐसा जिहड़ा जोगी है, वो फिर साडे मन नूं पाउंदा है, दिखावे दा नहीं, जिहड़ा निरंजन नूं ध्याउंदा है, जिहड़ा अंदर जागदा है, सच नाल लिप जोड़दा है, ऐसा जोगी होना चाहिए। क्योंकि संसार दे विच जिहड़े जोगी सी, पेख दे जोगी सी, कन्नां विच मुद्रा पा लैंदे, हथ दे विच कुमंडल लै लेंदे, धोती ला लेंदे, मंगण तुर गेरुए कपड़े पा लेंदे, मंगण तुर पैंदे, हथ विच डंडा ले लेंदे। पर ऐसा जोगी नहीं, मेरा समझाउंदे ने ते जोगी जिहड़ा उस नूं ध्याउंदा है, अंदर जागदा है, सच नाल लिप जोड़दा है, ऐसा फिर साडे मन नूं पाउंदा है। काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे। जिहड़ा काल दा जाल है, त्रै गुण माया दा, इस जाल नूं ब्रह्म अग्न द्वारा छड़ देंदा है, जल देंदा है, क्योंकि उसनूं ब्रह्म दा ज्ञान हो जाता है। चरा मरणगत गर्भ निवारे। जिहड़ा जन्म मरण दा गेड़ है, जिस दे विच अवस्थावां दे विच विचरदा है जीव, उसनूं उस काल दे जाल नूं खत्म कर देंदा है। क्योंकि काल ऐसा है कि सानू इस संसार दे विच तीन अवस्था दे विच ही फसा के रखदा है, बचपन दे विच भी, जवानी विच भी ते बुढ़ापे दे विच भी। ते जिहड़ा फिर जोगी है, इस तो मुक्त हो जाता है, विच रह के ही इस तो निर्लेप रहिंदा है। आप तरै पितरी निस्तारै। आप तरदा है पहला, इन्हां तो निर्लेप होके, ते फिर अपनी पितरियां दा उदार करता है, 21 कोलां तक उदार हो जाता है। सतगुर सेवे सो जोगी होए। सतगुर दी सेवा करता है, जिहड़ा सतगुर दी सेवा करता है, वो जोगी है। सच्चे गुर दा ज्ञान देंदा है, सच्चे गुर नूं आप ध्याउंदा है, आप कमाउंदा है, दूजिआं नूं ज्ञान देंदा है, सोझी देंदा है। वो जोगी है, वो दूजिआं नूं सम दृष्ट कर सकता है। एक दृष्ट कर समसर जाणै, जोगी कहिए सोई। गल्ली जोग न होई, एक दृष्ट कर समसर जाणै, जोगी कहिए सोई। ऐसा फिर जीव दूजे जीवां नूं किवें समदृष्ट होना है, किवें एक दृष्ट होना है, वो फिर इस सच्चे गुर दी सेवा करदा, ज्ञान देंदा है। पै रच रहे सो निरभउ होए। उस प्रभु दे पै विच रचिया रहिंदा है, ते फिर उसका रूप हो जाता है, निरभउ हो जाता है। जैसा सेवै तैसा होए। ते जिहा जिहा सेवा करेगा, उदा ही रूप हो जाता है। जे सतगुर की सेवा करेगा, प्रकाश की सेवा करेगा, तो आप भी प्रकाश रूप हो जाता है। जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जै नानक तिन भल जासी।
नर नेह केवल निरभव नाम। सिर्फ ते सिर्फ उस नाम, केवल नाम दे नाल जुड़ता है। वो नाम की है? निरभव है, निर्वैर है। अनाथा नाथ करे बल जाओ। सानू अनाथा नू दा नाथ बन जाता है, क्योंकि नाम द्वारा में जुड़ के असी जो अनाथ हाँ उस प्रभु दे नाथ हो जाता, साडा नाथ बन जाता है। असी अनाथ तो उस प्रभु दे बच्चे बन जाते, क्योंकि साडा उस प्रभु दे नाल मिलाप हो जाता है। अनाथों तो सानू नाथ कर देता है। पुनरप जन्म नहीं गुण ना ही गुण गाओ। गुण गाउंदा है उस प्रभु दे, उसनू फिर दोबारा जन्म नहीं मिलता। आप भी उस मालिक नाल मिलिया है ते दूजियां नू भी उस मालिक नाल मिला लैंदा है। अंतर बाहर एक हो जाना। हर थां उस मालिक नू देखदा, अंदर भी देखता है, फिर खुश होंदा है, प्रगट हो जाता, सारे पासे भी उसनू देखता है। गुर कै शब्द आप पछाणै। गुर दे शब्द द्वारा अपने आप की पहचान करता है, ते फिर उस प्रभु की पहचान होंदी है। क्योंकि जब तक अपनी दी पहचान नहीं, सानू अपने प्रकाश रूप की पहचान नहीं, सानू प्रभु की भी पहचान नहीं होंदी। सच्चा शब्द दर निशान है। सच्चे शब्द द्वारा उस दर की सोझी देता है जिस दर ते बैठा सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पाल रहा है, सारिਆਂ ਨੂੰ श्वास दे के जिंदा रखता है। उस दर का ज्ञान, सच्चे दर का ज्ञान देता है। जो वो ज्ञान है उसनू गुर नू सच्चा शब्द कह देता है। शब्द मरै तिस निज कर वासा। फिर जिहड़ा जीव गुर शब्द नू लैके एक दृष्ट हो जाता है, प्रकाश रूप हो जाता है, ते निज घर दे विच वासा हो जाता है। गुर दी सेवा दे नाल जीवत मर जाता है। गुर प्रसादी जीवत मरै। मर जीवै शब्द कमाए। मुख द्वारा सोई पाए, जे बिचों आप गवाए। आवे ना जावे चुकै आसा। आवर जावन तो रह तो जाता है, क्योंकि आशा तो निराशा हो जाता है। सिर्फ मालिक की आशा रखता है, इस करके आवन जावन तो रहत हो जाता है। गुर कै शब्द कमल प्रगासा। गुर दे शब्द द्वारा मन जिहड़ा कमल की तरह प्रकाश हो जाता। पहला कमल ऊंदा हुंदा है जदों, फिर जदों सीधा हो जाता, खिड़ जाता, उदा होंदा कमल दियां पत्तियां बंद होंदियां ने। इदां गुर दे ज्ञान द्वारा मन कमल दे फुल की तरह प्रकाश हो जाता है, खिड़ जाता है। जो दीस है सो आस निराशा। जो दृष्टमान है उसकी आशा छड्ड के उसकी आशावां तो निराशा हो जाता है। काम क्रोध बिख भूख प्यासा। ये काम तो क्रोध तो त्रै गुणा दे जिहड़ी बिख दी भुख प्यास तो रहत हो जाता है। नानक बिरले मेरे उदासा। विरले ने ऐसे जीव जिहड़े इस अवस्था च विचरते ने, जिन्हां नूं मिल के सानू ये ज्ञान हुंदा, सोझी हुंदी है। विरले ने जिहड़े इस अवस्था दे विच विचरते ने। सो इस तरीके नाल सानू समझाउंदे ने कि जोगी सो जोगी गुर शब्द विचारे। जोगी हुंदा जिहड़ा गुर शब्द दी विचार करता है। आप तरे पितरी कुल तारे।
ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋਗੀ, ਮੌਲਾਣਾ, ਪੰਡਤ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਨੇ, ਕਾਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਭੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋਗੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਜੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਜੀ ਜੋ ਉਲਟੀ ਕਰੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ। ਸੋ ਜੋਗੀ ਜੋ ਜੁਗਤ ਵਿਚਾਰੈ। ਜੋਗੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਜੋਗੀ ਜੋ ਉਲਟੀ ਕਰੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ। ਸੋ ਕਾਜੀ ਜੋ ਉਲਟੀ ਕਰੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ। ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੈ, ਆਪ ਤਰੈ ਪਿਤਰੀ ਕੁਲ ਤਾਰੈ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ, ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਜੋਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਾਜੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੁੱਲਾ, ਜਾਣੇ ਨਾਮ ਖੁਦਾਈ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਜੁਗਤ ਲੈ ਕੇ, ਆਪੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਹੋਰ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਵਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਮੈਂ ਮਿਲੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹਿ, ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਗ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਇਸੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਇਸ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਲੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਲੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਸੀਰ ਕੇ ਘਰ ਸੂਰ ਸਮਾਵੈ, ਸੱਸ ਘਰ ਸੂਰ ਵਸੈ, ਮਿਟੇ ਅੰਧਿਆਰਾ। ਸੱਸ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ, ਸੂਰਜ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਲੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੀਏ ਥੋੜਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜੀਵ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਪਰਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪਰਖਾਂਗੇ? ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੱਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ
ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਏਦਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਮਸਤਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਦੇਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਵਾਂਗਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਵਾਂਗਾ ਸਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਨੱਕ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਜੇ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੋ। सामने लेके आते हैं। मस्तक दे सामने लै जो, पलका उत्ते चुक। फिर सामने लेके आओ। फिर दृष्टि ਨੂੰ फोकस करके सम करके नेत्र, फिर अपने आप ਨੂੰ देखो। जे कोई नवा जीव जिसनों पहला नक दिसदा सी, वो हुण देखे कि दिसनों हट गया। जे दिसनों हट गया तो एक दृष्ट हो गया। जे हले भी दिसदा एक दृष्ट नहीं होया, वो जीप काल भी कर सकता है, क्योंकि कई बारी नहीं समझ आती तो आप वीडियो कॉल तो भी फिर सवार के आमो सामने बैठ के समझ सकते हाँ। जेड़े विश्वास करते ने, पूरे विश्वास नाल करते ने, तो वो एक दृष्ट हो जाते ने।
और नीचे लै जो ध्यान हम बिल्कुल रिलैक्स देखना है। आपने जो चादर विछी है उस तो जो भी थले है विछया है उस तो थोड़ा ऊपर देखने की कोशिश करनी है। इत्थे प्रगट होना शुरू हो जाएगा, इत्थे सानू प्रकाश अनुभव होना शुरू हो जाएगा। पूरे विश्वास के नाल आपां ध्यान लगाना है, देखना है। पानी की तरह जिवें पानी दी लहरां इदां दी सानू हलचल अनुभव होनी शुरू हो जाएगी। और सम करके देखिए अपने आप नू फिर। फिर नीचे लै जो ध्यान। नीचे लै जो ध्यान।
सामने लेके आइए ध्यान। मस्तक दे सामने लै जाओ, पलका उत्ते चुक दो।
सामने लेके आओ ध्यान। नीचे ध्यान ले जाओ। सम करके देखिए अपने आप को। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो गुरमुख प्यारिओ, इस तरीके दे नाल आपे नूं पहचानना है, अपने प्रकाश रूप नूं पहचानना है। जदों साडा मन प्रकाश हो गया तो सच हिरदे विच बस जाएगा, फिर आपां जुगत दी विचार कर सकते हाँ। फिर ऐसा जोगी बन जाता है मन जो प्रभु नूं पाउंदा है, आप सेवा दे विच लाउंदा है। सो आओ इन्नी क विचार करते हैं, बहुत सारियां भुल्लां हो जांदियां हन। आप संगत सतगुरु जी बख्शण योग हो, बख्श लेना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।